हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको द एड्रेस बाय मार्गा मिंको। दिस शॉर्ट स्टोरी इज ए pignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. However, she decided to leave them all behind and resolve to move on. यह एक बेटी की मर्म भरी लघु कहानी है जो हॉलैंड में युद्धोपरांत अपनी माँ की वस्तुओं को तलाश करने के लिए जाती है। जब वह उन्हें वस्तुएं पा जाती है तो वे वस्तुएं उसकी पूर्ववर्ती स्मृतियों को जागृत करती हैं। फिर भी वह उन्हें छोड़ने का निश्चय करती हैं तथा आगे बढ़ती जाती हैं। डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड। द वुमन लुक्ड एट मी searchingly. She had opened the door a chink. I came closer and stood on step. No, I do not know you. I am Mrs. S.'s daughter. She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. Perhaps I was mistaken. I thought perhaps it is not her. I had seen her only once, fleetingly, and that was years ago. It was most probable that I had rung the wrong bell. The woman let go of the door and stepped to the side. She was wearing my mother's green knitted cardigan. The woman button were rather pale from washing. She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. But I knew now that I was right. Well, you knew my mother? I asked. Have you come back? Said the woman. I thought that no one had come back, only me. Searchingly means to look for, ढूंढते हुए. Absolutely means certainly, निश्चित रूप से. Recognition means identification, पहचान. Cardigan means a kind of cloth to wear which is hand knitted. Cardigan. क्या आप मुझे अभी तक जानती हैं? मैंने पूछा. उस औरत ने मुझे खोज करने वाली नज़रों से मुझे देखा. उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला. मैं अत्यधिक समीप आ गई तथा पायदान पर खड़ी हो गई. नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती. मैं श्रीमती एस की पुत्री हूँ. वह दरवाजे को इस प्रकार पकड़े हुए थी जैसे वह इसे और खोलने से रोकना चाहती है. उसका चेहरा निश्चित रूप से परिचित होने का संदेश दे रहा था. वह चुपचाप अनवरत देख रही थी. संभवतः मैं गलत थी. मैंने सोचा संभवतः यह वह नहीं है. मैंने उसे केवल एक बार देखा, वह भी वर्षों पूर्व सरसरी तौर पर. यह सर्वाधिक संभव था कि मैंने गलत घंटी बजा दी हो. उस औरत ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया तथा एक ओर हट गई. वह मेरी माँ का बुना हुआ हरे रंग का कार्डिगन पहने हुए थी. धुलाई करने से उसमें लकड़ी के बटन पीले पड़ गए थे. उसने देखा कि मैं कार्डिगन देख रही थी तथा दरवाजे के पीछे अंशतः छिप गई. परंतु मैं जानती थी कि मैं सही थी. ठीक है, तुम मेरी माँ को जानती हो? मैंने पूछा. क्या तुम वापस आ गई? उस महिला ने कहा. मैंने सोचा कि कोई भी वापस नहीं आया था, केवल मैं. आई डोर ओपनड एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर. ए मस्टी स्मेल इमर्ज्ड. I regret I cannot do anything for you. I have come here especially on the train. I wanted to talk to you for a moment. It is not convenient for me now, said the woman. I cannot see you another time. She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. I stood where I was on the step. The curtain in front of the bay window moved. Someone started at me and would then have asked what I wanted. Oh, nothing, the woman would have said. It was nothing. I looked at the name plate again. Darling, it
said in black letter on white enamel, and on the jump a bit higher the number 46. Passage means veranda, galiara veranda. Musty means bad smell, दुर्गंध सड़न. Emerge means came into view, उभर कर आया. Convenient means comfortable, सुविधाजनक. Enamel means a smooth hard metallic coating, मीनाकारी करना. एक दरवाज़ा खुला और उसके पीछे बरामदा बंद हो गया. एक सीलन भरी दुर्गंध उभरी. मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती. मैं यहाँ विशेष रूप से ट्रेन से आई हूँ. मैं आपसे कुछ समय के लिए बात करना चाहती हूँ. अब यह मेरे लिए सुविधाजनक नहीं होगा. उस महिला ने कहा, मैं आपसे नहीं मिल सकती किसी और समय. उसने सिर हिलाया और सावधानीपूर्वक दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि उसे घर में और कोई परेशान ना कर सके. मैंने जैसे कदम रखा वैसे खड़ी रही. बीच में गलियारे की खिड़की का पर्दा खिसका. किसी ने मेरी ओर घूर कर देखा. वह संभवतः यह पूछ रहा था कि उसे क्या चाहिए. अरे कुछ नहीं, उस महिला ने जवाब दिया, कुछ नहीं. मैंने पुनः नाम पट्टिका देखी. इस पर सफ़ेद पुताई पर काले अक्षरों से डार्लिंग लिखा था तथा दरवाजे के किनारे पर थोड़ी ऊंचाई पर 46 संख्या लिखी थी. एज आई वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट about my mother who had given me the address years ago. It had been in the first half of the war. I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. I missed various things. My mother was surprised I should have noticed so quickly. Then she told me about Mrs. Darling. I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother, whom she had not seen for years. She had suddenly turned up and renewed their contact. Since then she had come regularly. Every time she leaves her, she takes something home with her, said my mother. She took all the table silver in one go. And then the antique plates that hung there. She had trouble lugging those large vases, and I am worried she got a crick in her back from the crockery. My mother shook her head pityingly. I would never have dared ask her. She suggested it to me herself. She even instead she wanted to save all my nice things. If we have to leave here, we shall lose everything, she said. Have you agreed with her that she should keep everything? I asked. As if that's necessary, my mother cried. It would simply be an insult to talk like that. And think about the risk she is running each time she goes out of the door with a full suitcase of or bag. Apparently means clearly, स्पष्ट रूप से. Acquaintance means recognition, परिचय, नाता. Lugging means dragging heavy load with effort, बलपूर्वक भारी बोझ ढो रही. ज्यों ही मैं धीरे धीरे स्टेशन पर वापस आई तो मैं अपनी माँ के बारे में सोचने लगी, जिसने मुझे यह बरसों पहले बता दिया था. यह युद्ध के पूर्व आधे समय की बात रही होगी. मैं कुछ दिनों के लिए घर आई थी तथा मुझे तत्क्षण ऐसा आभास हुआ कि कमरे में मानो सब कुछ बदल गया हो. मुझे ढेर सारी चीज़ों की याद आ रही थी. मेरी माँ आश्चर्यचकित थी कि मैंने इतनी शीघ्रता से चीज़ों को गौर किया. फिर उन्होंने मुझे श्रीमती डार्लिंग के विषय में बताया था. मैंने उनके विषय में पहले कभी नहीं सुना था, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे उनका मेरी माँ से पुराना नाता हो, जिससे वह सालों से नहीं मिली थी. वे अकस्मात एक दिन घर टपक पड़ी तथा पुराने संबंधों को हरा कर गई. तब से लगातार आने लगी. हर बार जब भी वह यहाँ से जाती, कोई न कोई चीज़ अपने घर ले जाती. मेरी माँ ने कहा वह एक ही बार में चांदी के सारे बर्तन ले गई. फिर वे पुरानी शैली की प्लेट जो यहाँ टंगी थी ले गईं. उन्हें फूलों के बड़े बड़े गुलदस्तों को ले जाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी. मैं चिंतित थी
कि उसकी कमर में क्रॉकरी का सामान ढोते ढोते अकड़न सी आ गई होगी। मेरी माँ ने दया भाव पूर्वक सिर हिलाया। मैं उससे कभी पूछने का साहस न करती, परंतु उसने वह स्वयं सुझाव दिया और फिर जिद करती थी। वे मेरी सभी चीज़ें, अच्छी चीज़ों को संभाल कर रखना चाहती थी। यदि हमें यहाँ से जाना पड़ा तो हमारी प्रत्येक चीज़ हमसे रह जाएगी। वह कहती मानो यह आवश्यक था। मेरी माँ चिल्ला पड़ी, उसके विषय में इस प्रकार की बात करना अपमानजनक था, अपमानजनक बात है, और वह जिन खतरों से गुजरती है उस बारे में सोचो। हर दफ़ा जब भी वह हमारे दरवाजे के बाहर सूटकेस या थैला लेकर निकलती तो खतरा ही बना रहता था। माई मदर seemed to notice that I was not entirely convinced. She looked at me reprovingly, and after that we spoke no more about it. Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. I did not want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a previous time. In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again, as I had the first time I met her. It was the morning after the day my mother had told me about her. I had got up late and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad back. "There is my daughter," said my mother. She beckoned to me. The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and a sleeveless hat. "Does she live far away?" I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case. "In Marconi Street," said my mother. "Number 46. Remember that." Reprovingly means to prove again, पुनः सिद्ध करते हुए। Beckon means called attention by gesture, संकेत करना। Nodded means shook the head, सिर हिलाया। मेरी माँ गौर करती हुई प्रतीत हुई कि मैं पूर्ण रूप में सहमत नहीं थी। उसने दोबारा सिद्ध करते हुए देखा था तथा उसके बाद उस विषय में कोई बात नहीं की। इसी बीच में रास्ते में इधर उधर की चीज़ों पर ध्यान दिए बगैर स्टेशन पर पहुंच गई। युद्ध के समय मैं पहली बार परिचित स्थानों से जा रही थी, परंतु आवश्यकता से अधिक आगे नहीं जाना चाहती थी। मैं एक कीमती वक्त की स्मृतियों को, उन घरों व गलियों को देखकर दोहराना नहीं चाहती थी। ट्रेन से वापसी के समय मैंने श्रीमती डार्लिंग को देखा, जैसा कि मैंने पहली दफ़ा देखा था जब वे मेरे सामने थी। सुबह का समय था। मेरी माँ ने उनके विषय में बताया था। मैं उस दिन विलम्ब से उठी थी। सीढ़ी से नीचे उतरते वक्त देखा कि मेरी माँ किसी को विदा कर रही थी। वह एक चौड़ी कमर वाली औरत थी। "मेरे बेटी है?" मेरी माँ ने कहा। उसने मेरी ओर संकेत किया। औरत ने हाँ कहते हुए सिर हिलाया और कोट के नीचे ब्रीफकेस उठाया। उसने भूरे रंग का कोट तथा बिना आकार वाली टोपी पहन रखी थी। "क्या वह दूर रहती है?" मैंने पूछा था, यह देखकर कि उसे भारी भरकम सूटकेस ले जाने में कठिनाई हो रही थी। मार्कोनी स्ट्रीट में, मेरी माँ ने कहा। संख्या 46 याद रखना। I had remembered it, but I had waited a long time to go there. Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally I was also rather afraid of it, afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed, which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things. But gradually everything became more normal again. Bread was getting to be a lighter color. There was a bed you could sleep in, untreated, a room with a view you were more used to glancing at each day. And one day I noticed I was curious about all the
that must still be at that address. I wanted to see them. Touch remember after my first visit in went to Mr. Darling's house, I decided to try a second time. Now a girl of about 15 opened the door to me. I asked her if her mother at home. No, she said my mother's doing an errand. No matter, I said I will wait for her. Naturally means it is simple, साधारण सी बात है. Connection means relation, सम्मान. Unthreatened means fearlessly, निर्भय होकर. मुझे यह याद था, परंतु वहाँ जाने के लिए मैंने बहुत प्रतीक्षा की. आज़ादी के बाद प्रारंभ में मेरा उस भंडार किए गए सामान से कोई लगाव नहीं था तथा साधारण सी बात थी. मैं इस बात से भयभीत थी कि मुझे उन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा जिनका संबंध उन लोगों से है जो अब मौजूद नहीं हैं. जो वस्तुएं डिब्बों में बंद करके अलमारी में इसलिए छिपाई गई थीं क्योंकि वे चीज़ें थीं, परंतु धीरे धीरे स्थिति पूर्व की भांति सामान्य हो गई. ब्रेड डबल रोटी दोबारा हल्के रंग की होने लगी. एक बिस्तर था जिस पर निर्भय होकर सोया जा सकता था. एक कमरा था जिसे देखने की आदत सी बन गई थी. तथा फिर एक दिन अकस्मात मैं उन सभी चीज़ों को पाने के लिए बेचैन हो गई जो अभी भी उसी पते पर होंगी. मैं उसे फिर से देखना, छूना और याद करना चाहती थी. मेरे प्रथम निष्फल प्रयास के बाद मैंने श्रीमती डार्लिंग के घर दूसरी बार जाने का निश्चय किया. इस बार लगभग करीबन 15 साल की एक लड़की ने दरवाज़ा खोला. मैंने पूछा कि क्या उसकी माँ घर पर है. नहीं, वह बोली, मेरी माँ किसी ज़रूरी काम से गई है. आई फॉलोड द गर्ल along द पैसेज. एन ओल्ड फैशन्ड आयरन Hanukkah candle holder hung next to a mirror. We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. Won't you sit down? Asked the girl. She held open the door of the living room and I went inside past her. I stopped, horrified. I was in a room I knew and did not know. I found myself in the midst of things I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere, or because of the tasteless was everything was arranged, because of the ugly furniture or the muggy smell that hung there. I do not know, but I scarcely dared to look around me. The girl moved a chair. I sat down and stared at the woolen tablecloth. I rubbed it. My fingers grew warm from rubbing. I followed the lines of the pattern. Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired. Hanukkah means the feast of light, a Hebrew festival in December. Samadan. Cumbersome means clumsy, भद्दा. ऑपरेशन मीन्स डिस्टर्ब, परेशान किया. मैंने गलियारे के साथ साथ लड़की का पीछा किया. एक पुराने फैशन का लोहे का समाधान दर्पण के पास लटका हुआ था. मैंने इसका कभी प्रयोग नहीं किया क्योंकि एकल कैंडल स्टिक समाधान से भद्दा था. क्या तुम बैठोगी नहीं? उस लड़की ने पूछा. उसने आवासीय कक्ष का दरवाज़ा खोल रखा था तथा मैं उसके पास से होकर निकली. मैं डर के कारण रुक गई थी. मैं कमरे में थी. मैं इस बात को जानकर भी अनजान थी. मैंने स्वयं को उन चीज़ों के मध्य पाया जिनके विषय में मैं फिर से जानना चाहती थी, परंतु अब विचित्र माहौल में आकर परेशान थी. अथवा उन चीज़ों को अरुचिपूर्ण ढंग से व्यवस्थित किया गया था या फिर से उन्हें गंदे फर्नीचर या मगों की बदबू से जो वहाँ टंगे थे. मुझे नहीं पता, परंतु मुश्किल से मैं अपने चारों ओर देखने लगी. वह लड़की एक कुर्सी लाई. मैं बैठ गई तथा उन्हीं मेजपोश को एकटिक देखने लगी. मैंने इसे रगड़ा. मेरी उंगलियां रगड़ने के कारण गर्म हो गईं. मैं डिजाइन की पंक्तियों को देखने लगी. किनारे पर कहीं जलने का एक चिन्ह था जिसकी भरपाई नहीं हुई थी. माई मदर will be back soon, said the girl. I have already made tea for her. Will you have a cup? Thank you. I looked up. The girl put cup ready on the tea table. She had a broad back just like her mother. She poured tea from a white pot
All it had was a gold border on the lid. I remembered she opened a box and took some spoons out. "That's a nice box." I heard my own voice. It was a strange voice, as though each sound was different in this room. "Oh, you know about them." She had turned round and brought me my tea. She laughed. "My mother says it is antique. We have got lots more." She pointed round the room. "See for yourself." I had no need to follow her hand. I knew which things she meant. I just looked at the still life over the tea table. As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. "We use it for everything," she said. "Once we even ate off the plates hanging there on the wall." I wanted to so much, but it was not anything special. I had found the burn mark on the tablecloth. The girl looked questioningly at me. "Yes," I said, "you get so used to touching all these lovely things in the house. You hardly look at them anymore. You only notice when something is missing, because it has to be repaired or because you have lent it." For example, antique means old-fashioned style, प्राचीन शैली की. Pewter means an alloy of tin and lead, कांसा. Questioningly means in a questioning manner, प्रश्न करते हुए. "मेरी माँ शीघ्र वापस आ जाएगी," लड़की ने कहा। "मैंने उसके लिए चाय पहले से बना ली है। क्या आप भी एक कप चाय पिएंगी?" "धन्यवाद।" मैंने ऊपर की ओर देखा। उस लड़की ने मेज पर चाय का कप प्रस्तुत कर दिया था। वह माँ चौड़ी पीठ वाली थी। उसने सफ़ेद बर्तन से चाय उड़ेली। मुझे याद है कि इस पर सोने का बॉर्डर था। उसने एक बॉक्स खोला तथा कुछ चम्मच बाहर निकाले। वह एक प्यारा सा डिब्बा था। मैंने स्वयं की आवाज़ सुनी और बिना समझे ही बोल उठी। यह बिल्कुल भिन्न आवाज़ थी। ऐसा आभास होता था मानो उस कमरे में हर आवाज़ अलग अलग हो। "अरे, तुम उनके बारे में जानती हो?" वह गोल चक्कर मुड़ी और मेरे लिए चाय लाई। वह हंसी। "मेरी माँ इसे पुरानी शैली की कहानी कहती हैं। हमारे पास कई और भी हैं।" उसने उस तरफ कमरे में इशारा किया। "स्वयं देख लो।" मुझे उनकी मदद की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। मैं जानती थी कि उनका मतलब किन चीज़ों में था। मैं चाय की मेज़ पर स्तब्ध जीवन को बस देखती रही। कांसे की प्लेट पर रखा वह सेव मुझे हमेशा ही आकर्षित कर रहा था। हम इसका इस्तेमाल प्रत्येक चीज़ के लिए करते हैं," वह बोली। "एक बार मैंने इस दीवार पर टंगी प्लेट में भी भोजन किया था। मुझे सर्वाधिक आवश्यकता थी, परंतु यह कोई विशेष नहीं था। मुझे मेज़ पोस्ट पर जले हुए निशान मिल गया था।" वह लड़की मेरी तरफ प्रश्न करती हुई नज़रों से देखने लगी। "हाँ," मैंने कहा, "इन सभी प्यारी चीज़ों को स्पर्श करने की आप इतनी ही अभ्यस्त हो जाती हैं कि आप उन चीज़ों को और अधिक देखना नहीं चाहती, परंतु जब कोई वस्तु खो जाती है तब तुम गौर करते हो क्योंकि इसकी मरम्मत करवानी होती है, केवल इसलिए क्योंकि तुमने उधार दिया है। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।"